اور اب خبروں کو تفصیل سے جانیں گے۔ ضلع پنچ میں سیکورٹی فورسز کو 24 گھنٹوں کے اندر 2 اہم کامیابیاں ملی۔ سیکورٹی فورسز نے 2 الگ الگ انکاؤنٹرز میں 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ضلع پنچ میں سرنگکوٹ کے شندرا ٹاپ اور میدانہ گاؤں میں سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ان دہشت گردوں کے قبضے سے 4 AK-47 رائفل، 2 پستول اور دیگر جنگی سامان برآمد کیا گیا۔ فوج کے مطابق ان دہشت گردوں کی ہلاکت سے راجوری اور پنچ میں دہشت گردی کے بڑے واقعات سے بچا گیا ہے۔ یہ انکاؤنٹر کل رات شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد علاقے میں نگرانی کے دیگر آلات کے ساتھ ڈرون کا بھی استعمال کیا گیا۔ آج صبح کے وقت سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے کے ساتھ ایک بار پھر انکاؤنٹر شروع ہوا۔ فوج کی اسپیشل فورسز، راشٹریہ رائفلز اور جموں کشمیر پولیس کے دستے دیگر فورسز کے ساتھ اس آپریشن کا حصہ تھے۔ بعد میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ڈرون کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ حساس علاقوں میں پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ آپریشن میں مارے جانے والے دہشت گرد غیر ملکی ہیں، ان کی شناخت کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ کل ہی کرشنا گھاٹی سیکٹر کے جگدہ باغ علاقے میں بھی سیکورٹی فورسز نے دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بریگیڈیئر MP سنگھ 6 سیکٹر RR کے کمانڈنگ آفیسر اور ونے کمار SSP پنچ نے سرنگکوٹ انکاؤنٹر کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دی۔ بریگیڈیئر MP سنگھ نے کہا، انٹیلیجنس کی بنیاد پر فوج اور پولیس نے گھیراؤ اور تلاشی مہم چلائی تھی۔ اس دوران 4 ملیٹنٹ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن فورسز نے 4 کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ چینی اور پاک ساخت کے اسلحے شامل ہیں۔ بریگیڈیئر نے مزید کہا کہ یہ ملیٹنٹ راجوری اور پنچ کے علاقوں میں کئی حملوں کو انجام دینے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، پاکستان ہمارے خطے میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم مستقبل میں بھی کسی بھی بڑے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سولہ تاریخ کو ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہاں اس ایریا سندرا سرنکوٹ ایریا میں کچھ ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ دیکھے گئے ہیں، اور ہم نے اوپ ترینیتر جو 3 مہینے سے چل رہا ہے اس کے انترگت ایک آپریشن لانچ کیا۔ 17 جولائی کو صبح ہمیں انفارمیشن ملی کہ 4 آرمڈ فورن ٹیررسٹ اس ایریا میں ہیں۔ فٹافٹ کارڈن کو ری ایڈجسٹ کیا گیا اور کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا گیا۔ کانٹیکٹ جب اسٹیبلش کیا گیا تو ان کی طرف سے فائرنگ شروع ہوئی۔ ہم نے فائرنگ کا جواب فائر سے دیا اور ہم نے اپنا کارڈن ری ایڈجسٹ کیا۔ ری ایڈجسٹ کرنے ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ ملیٹنٹس یہاں سے نکل نہ پائیں۔ ری ایڈجسٹمنٹ کے بعد کارڈن ٹائٹ کیا گیا اور ہم نے اس ایریا میں اسپیشل فورسز جیسے پیرا کمانڈوز ہم نے اس ایریا میں بلائے۔ فائرنگ پورا دن چلتی رہی، رات تک چلتی رہی۔ صبح آخری فائر تقریباً 5:30 بجے ہوا۔ جیسے ہی پوری صبح ہوئی، سرچ شروع ہوئی۔ سرچ میں ہمیں 4 AK رائفل ملی، 2 پسٹل ملی۔ رائفلز کے ساتھ میں 8 AK کی میگزین، 3 پسٹل کی میگزین، AK کے 192 راؤنڈ، پسٹل کے 26 راؤنڈ ملے۔ جو رائفل تھی ان میں چائنیز مارکنگ ہے اور جو پسٹلز ہیں اس کے اوپر پاکستانی مارکنگ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا LC کے اوپر سرلا میں 2 دن پہلے 2 ٹیررسٹ مارے گئے، نوشہرہ میں LC کے اوپر ٹیررسٹ مارے گئے۔ یہ درشاتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک یہ کام بند نہیں کرنے والا اور ہمارے ایریا میں اشانتی پھیلانا چاہتا ہے۔ بہت دنوں سے یہاں پر کافی سارے انپٹس اس علاقے میں آ رہے تھے کہ دہشت گرد اس علاقے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں ہے، فراق میں ہے۔ ان کی پریزنس کے انڈیکیشنز بڑے دنوں سے آ رہے تھے۔ ایک اسپیسیفک انپٹ کل جو آیا اس پہ ایک جنرل ایریا کارڈن لگا کے اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا، جس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے آج 4 ٹیررسٹ نیوٹرلائزڈ ہیں اور جس میں ریکوریز
4 AK-47, 2 पिस्टल्स और बाकी असला बारूद है। ये ऑपरेशन एक जीता जागता सबूत है, एक बड़ी अच्छी टॉप लेवल की सिनर्जी आर्मी, पुलिस, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें 38 बटालियन का बड़ा अहम सहयोग है और इंटर एजेंसीज का। अवाम अब खुले से हमारा साथ दे रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम के इस सहयोग से और हम सबकी सिनर्जी के बलबूते हम बहुत जल्दी पुंछ को फिर से मिलिटेंसी फ्री घोषित कर पाएंगे। जनूबी कश्मीर में आज सुबह एसआईए ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। एजेंसी ने अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, शोपियां और कुलगाम के कई इलाकों में छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी। एसआईए ने ये छापे एटीएम गार्ड संजय शर्मा के कत्ल केस मामले में मारे हैं। जिला शोपियां के कई मुकामात पर भी छापे मारे गए हैं। कई ओजीडब्ल्यूज और दीगर अफराद के घरों पर छापे मारे गए हैं। उधमपुर के इलाके मियाँबाग के करीब निजी इमारत की तामीर में मसरूफ 2 मजदूर लैंडस्लाइडिंग के नीचे दब गए। मलबे से दोनों मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए दोनों लाशों को निकाला गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। कहा जा रहा है कि चंद दिनों के दौरान खित्ते में होने वाली शदीद बारिशों ने जमीन को गैर मुस्तहकम कर दिया है, जिससे ये नाखुशगवार वाकया पेश आया। दुधमर्ग से त्राल आ रही एक सूमो गाड़ी डिग्री कॉलेज के नजदीक हादसे का शिकार हो गई। इसके नतीजे में गाड़ी में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए त्राल के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक जख्मी खातून को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल रेफर किया गया। त्राल पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जो सोमो थी ये आ रही थी दूधमर्गी से और आईटीआई के नज़दीक इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें टोटल 5 आदमी जख्मी हुए हैं। इनमें से एक है जो जिसको कि थोड़ा फ्रैक्चर था, उसको रेफर करना पड़ा बोन एंड जॉइंट। बाकी सब 4 के 4 उनको ट्रीटमेंट देकर उनके सब कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन एक्सरे करके टेस्ट जो भी लाजमी डॉक्टर साहब ने समझे उनको करने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। बिल्कुल जी, उसको थोड़ा फ्रैक्चर है पटेला का, इसको लेफ्ट लेग में। कोई बात नहीं, ऐसी कोई घबराने की कोशिश, वो बिल्कुल स्टेबल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हुज्जाज की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डीसी बडगाम समेत दीगर हुक्काम ने हुज्जाज के पहले ग्रुप का इस्तकबाल किया। हुज्जाज के रिश्तेदार भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। न्यूज़ 18 JKLS से बात करते हुए कई हुज्जाज ने हज का फरीजा अंजाम देने पर मसरत का इजहार किया। सऊदी अरब और श्रीनगर के बीच 38 परवाजों के जरिए हुज्जाज की वतन वापसी होगी। 2 अगस्त तक तमाम हाजियों की वापसी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इब्तिदाई 2 दिनों के दौरान 2 परवाजें ऑपरेट करेंगी। इसके बाद रोजाना 3 परवाजों के जरिए हाजियों की वापसी होगी। इस साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 12,000 मुसलमानों को हज की सादत नसीब हुई है। रोशनी घोटाला मामले में 6 मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के साबिक IAS ऑफिसर भी इसमें शामिल हैं। ये करोड़ों की जमीन की मुंतकली का मामला है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2015 में मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल जज CBI श्रीनगर ने साबिक IAS ऑफिसर बशारत अहमद धर, महबूब इकबाल, एजाज इकबाल, मुश्ताक अहमद मलिक, अकरम खान और सज्जाद परवेज के खिलाफ रोशनी अराजी स्कीम में फर्द जुर्म आयद किया है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर राजा इफ्तिखार हुसैन ने मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी हटाने की इंतजामिया से अपील की है। इफ्तिखार ने पिरल जागीर त्राल में न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी क्यों आए थे। उन्होंने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। नॉर्मल सी है तो फिर जुलूसों पे पाबंदी क्यों? तो ये फिर ये कंट्रास्ट है इसमें। ये कहना कि ये नॉर्मल सी है, एक तरफ आप नॉर्मल सी दिखा रहे हैं और एक तरफ से आप इन अयाम अज़ा को पाबंद सलासल करेंगे, वो जुलूसों पे पाबंदी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अलमिया है, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारे इन जज्बात को मजरू न किया जाए और एक कम्युनिटी को तकरीबन 10-20 साल से इस नाम पे उस नाम पे दबा के रखा है कि यहाँ नॉर्मल सी नहीं है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसको अलाउ करना चाहिए और इसके लिए जितनी सिक्योरिटी चाहिए उसको फराहम करें। मुहर्रम के पेश नज़र इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर पुलवामा के नायब BDC चेयरमैन मीर सरवर हुसैन ने जिला पुलवामा के गांगू इलाके का दौरा किया। उन्होंने गांगू और शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा करते हुए सेहत और सफाई के बंदोबस्त
का जायजा लिया। साथ ही इमाम बाड़ों का दौरा किया और मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकातें की। मीर सरवर हुसैन ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मुहर्रम के दिनों में शिया आबादी वाले इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाएं। सड़क, बिजली, पानी और मेडिसिन, इन 4 चीज़ों का डिस्कस मैंने किया है ऑलरेडी। तो डीसी साहब के नोटिस में भी लाया कि ये 4 चीज़ें तो हमें होनी चाहिए कंटिन्यू। एक तो पावर नाइट को कंटिन्यू 1 से लेकर 14 तक कंटिन्यू हमें पावर होना चाहिए। दिन में अगर कटौती होगी तो हमें वो परेशानी नहीं है। और दूसरी बात, मेडिसिन तो अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पे हमें, क्योंकि आज़ादार सफ़र ना करे, उनको पुलवामा जाना ना पड़े यहाँ से। और पानी की भी कम से कम 1 तारीख से 1 मुहर्रम से 14 तारीख तक कंटिन्यू हमें यहाँ टैंकर होना चाहिए पानी का। सांकू में यकजहती की बड़ी पहल हुई है। अंजुमन साहिब ज़मान और मरकज़ तबलीगात इमाम रज़ा सांकू ने साथ मिलकर मुहर्रम मनाने का ऐलान किया है। इस दिन में SDM सांकू और नायब तहसीलदार सांकू का कलीदी किरदार अदा किया। दोनों इदारों की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने करारनामे पर दस्तखत किए। इस दौरान सैयद अहमद रिजवी क़ुमी वाइस चेयरमैन उमूर सियासी अंजुमन साहिब-उज़-ज़मा और सैयद मोहम्मद सादिक रिजवी सांकू चेयरमैन मकतब तबलीगात इमाम रज़ा भी मौजूद रहे। सांकू में रवा साल 10 मुहर्रमुल हराम से 13 मुहर्रम तक जुलूस और अरबैन के जुलूस हस्बे साबिका निकाले जाएंगे, लेकिन नवी मुहर्रम की जुलूस मुश्तरका तौर पर हुसैनिया ज़ैनबिया थंग से बरामद होकर मिनी स्टेडियम सांकू में इक़्ताम पजीर होगा। दौरान जुलूस से अज़ा किसी भी किस्म की नारेबाजी, कमीज़नी, जंजीर जनी से इज्तनाब किया जाएगा। जुलूस के इक़्ताम पर दोनों जानिब से एक आलिम दीन खिताब फरमाएंगे। इस करारनामे के बाद अवामी हल्कों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की तरफ लौटेंगे। कभी कारोबारी सरगर्मियों का अहम मरकज रहे कश्मीर हाट, जिसे नुमाइश के नाम से भी जाना जाता है, गुजरते वक्तों के साथ अपनी शान रफ्ता खोता जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक कश्मीर हाट में कारोबार सिफर है। इनके लिए अपने खानदान के मामलात चलाना मुश्किल हो गया है। इसी दौरान दस्तकारी और हैंडलूम के महकमे ने कश्मीर हाट में कारोबारी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए कुछ इक़दाम करने का मंसूबा बनाया है। कश्मीर हाट की वैसे तो हमने इसको आउटसोर्स किया है। अभी आप देखेंगे कि वहाँ चिल्ड्रन इक्विपमेंट भी है या जो वहाँ पे फूड कियोस्क्स भी है। हमारा प्लान जो है इसको फिर से रीडेवलप करने का है। हम चाहते हैं कि ये एक एंगेजिंग एक्टिविटी रहे। पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई डिज़ाइनर यहाँ आता है तो उसका पहला स्टॉप जो होता है हमारा स्कूल ऑफ डिज़ाइन होता है या हमारी टेक्सटाइल कलेक्शन जो है। तो इसमें जो है हम इस एक क्राफ्ट म्यूजियम बना रहे हैं, फिर इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है और ताकि इसको जो है हम एक मॉडल के तौर पे लोगों तक पहुंचाए। उनको बढ़ाना चाहिए कारोबार, यहाँ कुछ नहीं मिलता है, मुझे आता है नहीं जाते हैं, काम का बिल्डर लगाता है एक्सीडेंट और कुछ नहीं है, यहाँ आता ही नहीं है। इनको इनके साथ बात कुछ करनी जो रिटर्न है इधर सया है नहीं था, इधर कोई ना आता है। इनको बड़े अफसर के पास जाना है, इनको नुमा की जाओ, उधर क्या कुछ मिलेगा, कश्मीर प्लस का आइटम यहाँ मिलेगा। हाँ अगर ये ना करिए सो गो असल ज्यादा अगर रश बढ़ काम बढ़ तो ज्यादा उनके कुछ आसान जैसा कम ही 5 ये। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें ADC त्राल साजिद नक्काश मेहमान खुसूसी के तौर पर रहे। प्रोग्राम में ऑफिसर्स पर जोर दिया गया कि आने वाले इलेक्शन में कोई भी परेशानी दरपेश न हो। सारे BLOs की ट्रेनिंग हो रही है। ये जो स्पेशल समरी रिवीजन जहाँ तक हमने ऑलरेडी किया हुआ है और जिसमें प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स थे जिनको जो ये एलिजिबल हो जाते थे जुलाई और अक्टूबर तक। अब चूंकि क्वालिफाइंग डेट जो एक्सटेंड हो गया है 1 जनवरी 2024, इसमें जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह का इनेकाद हो रहा है इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो मास्टर ट्रेनर्स आज यहाँ पे आए हैं और यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी ट्रेनिंग अभी इस वक्त एक्सटेंसिवली ये जो समरी रिवीजन हो और कोई भी नोबडी इज़ लेफ्ट आउट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा एज पर द क्वालिफाइंग।
करगिल शहर की बुलंद तरीन चोटी जो कि 1971 में हिंदुस्तान का हिस्सा बनी थी यानी पॉइंट 13620 को करगिल विजय दिवस के मौके पर सयाहों के लिए खोला गया है। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की काविशों के बाद करगिल से नजर आने वाले दिफाई स्ट्रैटेजिक और मशहूर पॉइंट को फौज ने टूरिस्ट के लिए खोला है। यह हिस्टोरिकल प्लेस हिंदुस्तानी फौज की पाकिस्तान के साथ लड़ी जाने वाली तमाम जंगों का गवाह रहा है। ये मुकाम 1971 तक पाकिस्तान के कंट्रोल में था, ताहम उसके बाद से फौज ने इस पॉइंट पर मजबूती से कंट्रोल बरकरार रखा है। कि 13.8320 टॉप से जाना जाता है सर, और ये एक मंथ पहले ही सिविलियन के लिए अलाउड हो चुका है। तो यहाँ पे सिविलियन काफ़ी मात्रा में आते हैं सर, जो वार मेमोरियल और इस पॉइंट को देखने के लिए सर। यहाँ से काफ़ी हाइटें ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं सर देखने में, अपने आप में ही इस कारगिल सिटी की खूबसूरती दिखती है सर। और ये जो पॉइंट है सर, यहाँ पे तकरीबन 3 बार हो चुकी हैं सर। जो 17 मई 1965 को फर्स्ट बार इधर जो थी मेजर BS रंधावा साहब ने इसको कम्प्लेक्स को कैप्चर किया था, लेकिन UNO का दबाव होने के कारण फिर छोड़ना पड़ा सर। उसके बाद नेक्स्ट सर फिर इंडियन आर्मी ने इसको कैप्चर किया, लेकिन ताशकंद समझौता होने के कारण फिर इस कम्प्लेक्स को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। अकेली बार मेजर वेंटीनाथन साहब ने जो कि इस कम्प्लेक्स को कैप्चर किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक इस कम्प्लेक्स के ऊपर भारतीय सेना का दबदबा। राजौरी जिले के कालाकोट इलाके में मकामी कमेटी की जानिब से दंगल का इनेकाद किया गया। इसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। BDC अरकान और कई नामवर शख्सियात ने इस इवेंट में शिरकत की। सालाना दंगल में 100 से ज्यादा मुकाबले मुनक्किद किए गए। मेंढर के छतराल इलाके में आर्मी ने एक खास मीटिंग का एहतमाम किया। मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान रिश्तों को मजबूत करना इस मीटिंग का मकसद रहा। खित्ते की खुशहाली के लिए अमन और हम आहंगी को पैगाम फैलाने के मकसद से इसका इनेकाद किया गया। इस मीटिंग के दौरान मकामी आबादी की मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत हुई। अहम उमूर बशमूल सहूलियात की फराहमी, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम के बारे में भी बातचीत की गई। आर्मी सेना ने, भारतीय सेना ने यहाँ एक कैंप रखा जिसमें तमाम पंचों और सरपंचों को बुलाया और उनसे पूछा कि आपको क्या क्या परेशानी है। तो हम सब ने उनको अपनी परेशानी बताई कि भाई आज यहाँ बहुत बड़ी बेरोज़गारी है, यहाँ बच्चे ड्रग्स में मुलव्वस हैं। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम हर आपकी बात पर सहमत हैं और आपकी हर हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आज की ये जो मीटिंग यहाँ पे आर्मी के बीच में रखी गई और अच्छा एक माहौल बनाया गया है फौज के बीच में और आम पब्लिक के बीच में, और इसके ऊपर हमने हर प्रकार की जो आर्मी की तरफ से बात की गई और हमने भी अपने जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे रखे कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो, माहौल अच्छा रहे, मिलजुल कर रहें। इसी के ऊपर ज़्यादातर जो हमारी बातें हुई हैं। एक छतराल स्कूल के अंदर एक आर्मी कैंप रखा गया जिसमें कॉमनी कमांडर साहब ने हमारे से कुछ चंद एक पॉइंट मांगे या हमने भी दिए। उसमें से मेडिकल फैसिलिटी है हमारे हर तकरीबन गाँव में, वो कुछ हैंडीकैप बच्चे जिनको कुछ हैंडीकैप की तरफ से कोई कुर्सी वगैरह या साइकिल या कोई भी रोड टैक्स के लिए उनको हेल्प मिलनी चाहिए, वो पॉइंट दिए हैं। तो कोई भी गलत हरकत होने पर गाँव में हम फौरी कॉमनी कमांडर साहब को मैसेज देंगे या खुद भी पर्सनल यहाँ गाड़ी लेकर आ जाएंगे। कंजरवन में फौज की जानिब से अपनी नौइयत की पहली कैंपेनिंग साइट का इफ्तिताह किया गया। ये कैंपेनिंग साइट इलाके की एक साबिक फौजी ने कायम की है। कैंपेनिंग साइट कायम करने में मकामी फौजी यूनिट ने उस साबिक फौजी एहलकार की काफी मदद की है। वाज़ेह है कि कंजरवन इलाके में लोगों को सेहती शोबे के साथ जोड़ने और उन्हें रोजगार के मामले में खुद कफील बनाने के लिए फौज शुरू से ही अपना अहम रोल निभा रही है। SDM ऑफिस टनमर्ग के अहाते में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट गुलमर्ग की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मूसवी की निगरानी में टनमर्ग में पहली बार इस किस्म का कैंप मुनक्किद किया गया। SDM गुलमर्ग ने भी ब्लड डोनेट किया। इसके अलावा SDM ऑफिस के मुलाजमीन, मकामी नौजवानों, CRPF पुलिस, मीडिया, बार एसोसिएशन टनमर्ग और दीगर महकमे के 200 से ज्यादा अफराद ने खून का अतिया पेश किया। मकामी लोगों ने कीमती जानों को बचाने के लिए इस कैंप के इनेकाद पर SDM गुलमर्ग के कदम को सराहा।
संगमरमर में फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगर हम देखें कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल में हर रोज़ हमें कॉल आती है कि हमें ब्लड डोनेशन चाहिए, जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, खून देने से कुछ नहीं होता है, किसी की जान बच जाती है, उसमें आखिरत में आपको भला मिल जाएगा, अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करेगा। सो कम फॉरवर्ड, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, प्लीज़ डोनेट योर ब्लड एंड सेव अ प्रीशियस लाइफ। सर सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं एसडीएम साहब के, जिसने आज ये ब्लड कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया। और हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे कैंप्स मुनक़्क़द करने की, क्योंकि हम देखते हैं जब कहीं भी एक्सीडेंट पेशेंट हो या कुछ भी होता है, लेकिन उस वक्त जब पेशेंट हॉस्पिटल में तो वहाँ पे ब्लड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर हम इस तरह की पार्टिसिपेशन इन ब्लड कैंप्स में दिखाएंगे तो उससे क्या होता है कि उस पर्सन की जान बच सकती है। ये हेकान तस इंसान लगे यमिस ने वक्त विज ना वो इसमें जवान अखज बच जवान बचुन इंसानी फर्ज बनान इंसानस यह सदका जारी तथ शक कहीं थे। लेकिन वनस ये गो ये बड़ ठीक पे गो बड़ असल पे रिफ्रेशमेंट गई ठीक पे जनाब पान तमस खड़ा अकिस दोस तो यह सानि खतर नौजवान बन अपील करान कि यह सदका जारी ये खून दिन क्या अगर कंस जान बच सह कह। मैं एज एन इंचार्ज ऑफिसर ब्लड बैंक एलडी हॉस्पिटल से मैंने अपनी टीम लाई हुई है साथ में। आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ एसडीएम ऑफिस में इनकी ज़ेर निगरानी हुआ। ये बढ़िया कैंप हुआ है। अभी तक 104 यूनिट हमने लाए हैं और भी एक्सपेक्टेड है। सो यंग लोग आ रहे हैं, आके डोनेट कर रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।